just thinking of that we have to make spiritual progress in our life. और मैं सोच रहा था कि कैसे हमें अपने आत्मिक जीवन में प्रगति करना है. And one of the reasons that we come into the church is that we can make spiritual progress. और कलीसिया में आने का एक कारण ये है कि हम लोग अपने आत्मिक जीवन में प्रगति करें. Just as we send children to school. Just as we send children to school. जैसे हम लोग छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं. We don't want to remain first standard for many years. हम लोग ये नहीं चाहते कि वो लोग पहली कक्षा में हमेशा रहे. But we want to progress that they may pass their school and go ahead. लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग स्कूल में से आगे बढ़े, सफल हो और आगे बढ़े जीवन में. So then get a good job and be useful and can be useful later on in life. ताकि वो लोग को फिर अच्छा नौकरी मिले और वो अपने ज्ञान का अच्छा इस्तेमाल कर सके. And the Lord also has a deep interest in our own life that we also make spiritual progress. इसी तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता को भी हमारे जीवन में दिलचस्पी है कि हम भी अपने जीवन में प्रगति करें. And that we may be useful for Him in His kingdom. ताकि फिर हम उसके राज्य के लिए वो हमें इस्तेमाल कर सकें. And the Lord, this is what the Apostle Paul said in Colossians chapter 1. और कोलोसियों चैप्टर 1 में अपोस्टल पौलुस ने ये बोला है. कोलोसियों चैप्टर 1 verse 28. वाक्य 28. And we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ, or mature in Christ. And for this purpose I labor, striving according to His power, which mightily works within me. पढ़िए. हम उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके. 29. इसी अभिप्राय से मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है, कठोर परिश्रम करता हूँ. Correct. So this was the burden of the Apostle Paul to all the believers in different parts of the world that there were churches in. और जितने भी कलीसिया थे दुनिया में उन सब की और अपोस्टल पौल के मन में यही बोझ था. He admonished every man. वो हर एक व्यक्ति को ज्ञान देता था, शिक्षा देता था. That he admonished means even to correct them. इसका मतलब क्या था कि वो उनको सुधारता था. And he taught every man. और हर एक व्यक्ति को सिखाता था. With all the wisdom given by the Holy Spirit. जो कुछ भी उसको बुद्धि मिला था पवित्र आत्मा के द्वारा. And the purpose is that they become mature and mature believers in Christ. और उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी व्यक्ति थे वो प्रभु यीशु में सिद्ध बने, समझदार बने. And it was not an easy job. और ये बहुत ही आसान काम नहीं था. Because he had to rely on the power of the Holy Spirit. क्योंकि उसको हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था. And he had to labor very hard. और बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था. And because he labored hard, there was a good fruit in all the believers in different churches. और क्योंकि उसने बहुत मेहनत की इसलिए सारे जो विश्वासी थे उनके जीवन में अच्छा फल आया था. And that's why he always said, I want you to grow strong and mature in Christ Jesus. इसलिए हमेशा अपोस्टल पौल जितने भी विश्वासी थे उनको बोलता था कि मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र प्रभु यीशु में ताकतवर बनो. I don't want you to be like little babies. मैं नहीं चाहता कि तुम बस छोटे बच्चों के जैसे ही रहो. The Corinthians in the Corinthian church, they were like little babies. जो कोरिन्थियों का जो कलीसिया था उसमें जो विश्वासी थे वो लोग छोटे बच्चों के जैसे थे. Because they were fighting and quarreling among themselves. क्योंकि वो लोग हमेशा एक दूसरे के बीच झगड़ा करते रहते थे. They thought I was important and this one was not important. All the bad behavior was there. वो लोग सोचते थे कि वो लोग बहुत ही जरूरी व्यक्ति है, बहुत ही बड़े व्यक्ति है, बाकी लोग इतने बड़े व्यक्ति नहीं है. And because of that, there were a lot of problems, and they said there was a lot of fighting, gossiping, and all sort of things, bad things were going on in the church. और इसकी वजह से उनके बीच बहुत झगड़ा चलता था और बहुत सारी समस्याएं थी वो कलीसिया में. The Apostle Paul really strongly rebuked them. इसलिए अपोस्टल पौल ने उनको बहुत जोर से डांटा था. And he said, why don't you take up your cross every day and follow the Lord, and things will go well with you. और फिर अपोस्टल पौल ने उनको बोला था कि क्यों नहीं अपना तुम क्रूस उठा के रोज चलते हो, फिर तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा. There was complaint that this person is taking advantage of me. और ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है. So they were taking one believer to another, and they were taking the believers to the court. तो फिर विश्वासी लोग एक दूसरे को अदालत लेके जा रहे थे. Believers were taking believers to the court. एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अदालत लेके जा रहा था. For property matters. प्रॉपर्टी के विषय के लिए. All other earthly things. या सब संसार की चीजों के लिए. The Apostle Paul said, what a shameful thing it is. और अपोस्टल पौल बोल रहे थे कितना शर्मिंदा वाली बात है.
are there no believers in the church who can settle such matters? क्या कलीसिया में कोई ऐसे विश्वासी नहीं है जो ये सारे मामले निपटा सकते हैं? And in the Corinthian church, there was not one elder who could settle और those कोरिन्थियों के problems. कलीसिया में से कोई भी एल्डर नहीं था जो ये सब मामलों को ठीक कर सकता था, Even the elders were so immature. क्योंकि जो एल्डर थे वो लोग भी इतने सिद्ध नहीं थे, समझदार नहीं थे। And then ultimately, the Apostle Paul had to come in the picture. और फिर आखिर में अपोस्तल पौल को आना पड़े इस सब के बीच। And he said, instead of you all settling the matter, you are taking to unbelievers in the court. और उनको बोल रहा था कि ये सब बातें तुम आपस में निपटाने का छोड़ के तुम अविश्वासियों के सामने जा रहे हो ये सब Who are लेके, children of the devil. जो शैतान के बच्चे हैं। He said, don't you know that the saints are going to judge all the people of this world? उसने बोला क्या तुम जानते नहीं हो कि ये जो संत है ये एक दिन पूरे दुनिया के ऊपर राय बनाने वाले हैं, न्याय देने वाले हैं? And he said, don't you know the people in this world who are living, all the big and famous people are zero in the church? और क्या तुम जानते नहीं कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो कलीसिया में प्रभु की आंखों में एकदम शून्य है? And you are going to such zeros to settle your own earthly matters. और ऐसे शून्य लोगों के सामने तुम अपने समस्या लेके जा रहे हो ताकि वो लोग उसे ठीक कर सके। And it's such a shame, he said. कितनी शर्मिंदा की बात है ये। He said, why don't you suffer yourselves? क्यों तुम खुद ही ये सब क्यों नहीं ठीक कर लेते? But they had not learned to suffer themselves. लेकिन उन्होंने ये दुख उठाना नहीं सीखा था। That's why they remain very, very spiritually immature. और इसकी वजह से आत्मिक रूप में वो लोग बहुत ही बच्चे रह गए थे। But when the Apostle Paul told them all these things, they repented. लेकिन एक बार अपोस्तल पौल ने उनको डांटा, उसके बाद उन्होंने पछतावा And किया afterwards, things went very well with them. और उसके बाद उनके जीवन में बहुत अच्छा हुआ। And that's what the Apostle Paul always had a burden that people will grow and become mature, become like Jesus in their और life. इसलिए अपोस्तल पौल के मन में हमेशा एक बोझ रहता था कि जो जितने भी विश्वासी हैं वो लोग प्रभु में बढ़े और प्रभु यीशु के जैसे बने। What did Jesus say? Jesus said, "Is one person slaps you, to show the other cheek. प्रभु यीशु ने क्या बोला था? अगर किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उसे दूसरा गाल दिखाओ। If somebody tries to cheat you, take one thing of you give another one. अगर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है, एक चीज ले रहा है तो उसको और एक चीज भी लेने दो। This is the way Jesus would live. प्रभु यीशु इस तरीके से जीते थे। He had no attachment to things of this world. कोई भी सारे संसार की चीजों से उनका कोई लगाव नहीं था। But as believers, when we become first believers in the Lord, we are very attached to all the earthly things. लेकिन जब हम लोग नए विश्वासी रहते हैं, उस समय कई सारे संसार की चीजों से हमारा लगाव रहता है। We cling on to so many earthly things. बहुत सारे संसार की चीजों से हम पकड़े रहते हैं That's why we are so unhappy in our lives. और उसकी वजह से हम लोग खुश नहीं रहते अपने जीवन में। The Apostle Paul wanted to grow up and become like Jesus. और इसलिए अपोस्तल पौल उनको बोल रहा था कि अभी तुम बढ़ो, आगे बढ़ो और प्रभु यीशु के जैसे बनो। And told the testimony of Jesus was, "My kingdom is not of this world. और प्रभु यीशु की जो गवाही थी वो ये थी कि मेरा जो राज्य है वो इस दुनिया का नहीं है। If my kingdom was this world, then my disciples also would fight." अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो मेरे चेले भी झगड़ा करते। So all those who fight, believers who fight in Guadalajara are people who are people of this world. तो जो कोई विश्वासी है जो अपने को विश्वासी बोलता है लेकिन संसार की चीजों के लिए लड़ता है वो इस दुनिया का ही व्यक्ति है। But God wants us to come from such a lower living to a higher plane of living. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इतने छोटे जो निचले स्तर है जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं उससे ऊपर बढ़े। That's why when we speak about discipleship and following the Lord, most believers have no interest because they said they have no interest in all these things. इसलिए कई बार हम लोग जब बोलते हैं कि प्रभु का चेला बनना है, ये सब बातों में कई सारे विश्वासियों का कोई दिलचस्पी नहीं होता। They're interested that God will bless them and make them prosperous and give them all good things in this world. उनको बस प्रभु की आशीष है और प्रभु उनको अमीर बनाएगा, यही सब चीजों में उन्हें दिलचस्पी रहती है। But when Jesus tells them, when you have to follow me, you have to take up a cross, and follow me. लेकिन जब प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हें मेरा पीछा करना है तो तुम्हें अपना क्रूस उठा के उसका पीछा करना है। They have very little interest for that. और वो सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत कम दिलचस्पी होती है। But the Lord said, those who live for Jesus will go well with them. प्रभु यीशु ने बोला कि जो कोई भी प्रभु यीशु के लिए जीते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। The writer of the Hebrews, and I think Hebrews chapter 6. इब्रानी चैप्टर 6 में जाएंगे। इब्रानी चैप्टर 6 Hebrews chapter 5. चैप्टर 5 इब्रानी चैप्टर 5 Chapter 5 verse 11 and 12. वाक्य 11 और 12। Concerning him we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone again to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. पढ़िए। हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हें अब तक तो शिक्षा हो जाना चाहिए था, फिर भी ये अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं परंतु दूध की आवश्यकता है। It says, for everyone who partakes only of milk is accustomed to the word of righteousness, not accustomed to the word of righteousness, for he is a baby. But solid food is for the mature, who because of practice of their senses have trained to discern both good and evil.
पढ़िए 13-14। 13-14। प्रत्येक जो दूध ही पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यास नहीं कर, क्योंकि वो बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी पहचान करने में निपुण हो गई है। See, it is like they said, the apostles said they are like small. And apostle who was writing, he said, I'm writing you because you are like small babies. यहाँ पे जो लेखक जो पत्र लिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं ये पत्र इस तरीके से लिख रहा हूँ जैसे तुम छोटे बच्चे हो, Because you can't spiritually understand anything. क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में जो काफी सारी चीजें हैं वो तुम्हें समझता नहीं है, You only want milk. तुम्हें बस दूध चाहिए। And what is the milk? और दूध क्या होता है? God is forgiving your sins. कि प्रभु मेरे पापों को माफ करता है, God loves you very प्रभु much. मुझसे प्रेम करता है, God will take care of you. प्रभु मेरा ख्याल रखेगा। This is only the message always God will tell all the small babies. तो ये जो प्रचार है जो हमेशा छोटे बच्चों को हम लोग बोलते रहे हैं, It is not wrong, it is very right. वो सही बात है, गलत नहीं है, But then that is the only message they can understand. लेकिन ये छोटे बच्चे बस यही एक प्रचार समझ सकते हैं। But the message for people who are going mature is that you should be disciplined, you should take up your cross, follow the Lord, humble yourself. These are the things which most people don't like. लेकिन जो मसीह जीवन में जो जिसे लोग बढ़ते हैं उनको किस तरह का संदेश हमें से सुनना पड़ता है? नम्र बनो, अपना क्रूस रोज उठाओ, अनुशासन लाओ अपने जीवन में, ये सारी चीजें। And they can't understand it. और ये जो समझदार है ये बातें समझ सकते हैं। And that's why he said, you will have spent so many years of past, you will not progress in your Christian life. और वहाँ पे वो बोल रहा था कि इतने साल से तुम अपने ईसाई जीवन जी रहे हो, इसके बावजूद तुम प्रगति नहीं कर रहे हो। But I want, my aim is that you all progress in your Christian life. लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि तुम सब लोग अपने आत्मिक जीवन में प्रगति करो। And why they were not progressing? और क्यों वो लोग प्रगति नहीं कर रहे थे? They were so dull of hearing, they said. क्योंकि वो लोग को सुनाई नहीं दे रहा था, Because they didn't want to hear. वो लोग को सुनना नहीं था, इसीलिए। Like for example, when you tell people about in the world about Jesus Christ, about eternal heaven, for them, they say, ये तो क्या, तो मूर्खपन, they say it's all foolishness. उदाहरण के तौर पे अगर इस दुनिया के लोगों को हम लोगों ने सुसमाचार दिया, प्रभु यीशु के बारे में, अनंत काल जीवन के बारे में बोला, तो वो लोग बोलेंगे ये सब क्या तुम बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। It's like they are dull, they don't understand what this fellow is talking about. All rubbish, I cannot understand. ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता हम लोग क्या बोलते हैं। But if you tell a believer about heaven and that person can understand. लेकिन एक विश्वासी को अगर तुम स्वर्ग या नरक के बारे में बोलोगे तो वो तो तुरंत समझ जाता है। And sometimes the more intelligent the person, more difficult for them to understand. और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इस दुनिया में बहुत समझदार या बुद्धिमान होते हैं उनको और मुश्किल पड़ता है ये सब चीजें समझना। All the PhDs and the doctors and the engineers cannot understand the gospel at all. जितने सारे PhD है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोगों को बहुत तकलीफ होता है सुसमाचार समझने में। All the simple people, uneducated people, they can understand very लेकिन clearly. जो एकदम सीधे साधे लोग होते हैं, भले वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग सुसमाचार समझ जाते हैं आसानी से। The Bible is written in such a way that all the intelligent people cannot understand and all the simple, uneducated people can understand the Bible. बाइबल इस तरीके से लिखा गया है कि दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं वो लोग उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो लोग इतने समझदार नहीं है, वो लोग आसानी से समझ सकते That's हैं। why Jesus said, I thank you, Father, that you have hidden these things from the wise and the intelligent, but revealed them to babies. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की तूने ये सारी चीजें सारे बुद्धिमान लोगों से छिपा के रखी है और इन्हें छोटे बच्चों को तूने दिखलाया है। That's what the Apostle Paul said, in the church, can you see how few highly educated people are there, how few famous people are there, how few of them are there, so few, they are the minority. इसलिए कलेशिया में भी हम लोग देखते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत मशहूर है या बहुत बुद्धिमान है या बहुत अमीर होते हैं। All the people in the church, most of the people are the low class, uneducated, all of them, they come to become believers. कलेशिया में जितने भी अधिकतर लोग जो लोग रहते हैं वो लोग या तो कम पढ़े लिखे रहते हैं या नीचे जात के रहते हैं, वो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। Because God always wants to favor the humble. क्योंकि प्रभु हमेशा उसकी अच्छाई नम्र लोगों की ओर ज्यादा दिखाता है। There are few educated people like the Apostle Paul, बहुत ही कम ऐसे एकदम पढ़े लिखे लोग रहते थे जैसे अपोस्टल पौलुस था, who was also quite rich, जो काफी अमीर भी था, but they had to humble themselves like anything to understand the word of God. लेकिन उसने अपने आप को एकदम नम्र बनाया था जिसके द्वारा प्रभु के वचन को समझ पाया था। And that's how the Apostle Paul grew in grace and could understand the ways of God very clearly. और इसी तरीके से प्रभु के अनुग्रह में वो बढ़ता गया और फिर प्रभु के मार्गों को वो समझता गया। When we come to the Lord makes us saints. जब हम लोग प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें संत बनाता है। You know, that is the three phases of our Christian life. One, we become a saint, then we become a soldier, then we become a savior. तो हमारे मसीह जीवन में तीन भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग संत बनते हैं, उसके बाद हम लोग फौजी बनते हैं, उसके बाद Savior. उसके बाद हम लोग उद्धारक बनते हैं। This is all what C.T. Studd used to teach in the jungles of Africa. तो ये चीज था जो C.T. स्टड अफ्रीका के जंगलों में सिखाते थे। He was one of the finest missionaries. He was a cricketer. He sacrificed his own. He was an extremely rich man, and he was such a famous cricketer.
he left his life and became a missionary first to China, then he came to India, into Uti, and last he came to Congo in Africa. वो बहुत ही अमीर और मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी थे अपने दिन में, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दिया और वो एक प्रचारक बने। फिर वो चाइना गए, वहां से इंडिया में आए, फिर वहां से अफ्रीका में गए। And the greatest work he did was God did in his life was in Congo, Africa. और सबसे जो महान कार्य प्रभु ने उनके जीवन में किया था वो था अफ्रीका में कॉन्गो करके एक जगह पे। And the people he used to preach to were the cannibals and the headhunters. और वहां पे जिन लोगों को प्रचार करते थे उनको कैनिबल्स या हेड हंटर्स बोला जाता था। वो लोग लोगों का सर काटते थे। And so many thousands of them got converted. और उनके जो बीच जितने भी लोग थे, कई सारे हजारों प्रभु में आए थे। But he said, see, they've changed their lives completely. और उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। When they used to give their testimony during baptism, फिर बैप्टिज्म में रहते तो लोग अपना गवाही देते थे। they would say, I have killed so many people in my past life. और वो लोग गवाही देते इस तरीके से गवाही देते थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को मार डाला है। I've eaten so many people. मैंने कई लोगों को खाया भी है। And this is the type of people who have come to the Lord. इस तरीके के लोग थे जो फिर प्रभु में आए थे। But he said, soul winning is a much simpler work. तो फिर सीटी स्टार ने बोला था कि बाकी सब चीजों की तुलना में एक व्यक्ति को प्रभु में लाना काफी आसान होता है। But it's much difficult to make them from saints to soldiers and saviors. और लेकिन उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि एक संत को संत से फौजी बनाना और फौजी से एक उद्धारक बनाना। For example, it is very easy to get a lot of big KG class children. जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत आसान होता है कि बहुत सारे केजी क्लास के बच्चों को इकट्ठा करना। Such a lot of KG class children are there all over Bombay. पूरे शहर में कितने सारे केजी क्लास के बच्चे हैं? How many graduates are there? Less. लेकिन ग्रेजुएट्स कितने हैं? थोड़ा कम। And postgraduates and PhD are very less. और पोस्ट ग्रेजुएट्स और कम, पीएचडी और भी कम। There's a lot of trouble is there to go up. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऊपर बढ़ते जाना। And that's how the Lord. So it is difficult. You have to work with people. तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है, लोगों के साथ हमें बहुत कार्य करना पड़ता है। And the people have to lead their lives to the Lord. और लोगों को अपना जो जीवन है प्रभु के अनुसार चलाना पड़ता है। And God, when we come to Jesus Christ first time, we become born again. Where God calls us saints. तो जब हम लोग प्रभु में नया जन्म पाते हैं, एकदम नया मसीह जीवन पाते हैं, प्रभु हमको संत बुलाता है। You know, we all called saints. क्या तुम जानते हो कि हम सभी लोगों को संत बुलाते हैं प्रभु? Suppose you want to take a title, you can take a title of saint. तो अगर हमें कोई नाम लेना है तो हमें संत का नाम लेना है। You don't have to be beatified by the Pope or any such thing. हमको ऐसा कोई दूसरा कोई बड़ा नाम नहीं लेना है जैसे पोप या ऐसा कोई। No, we don't have to be given a title by the Pope or something. तो हमें जो कैथलिक लोगों का जो पोप रहता है उस जरूरी नहीं कि वो हमें कोई टाइटल दे या नाम दे। In Romans 1 chapter 7, रोमियो चैप्टर 1 वाक्य 7, चैप्टर 1 वर्स 7। रोमियो चैप्टर 1 वाक्य 7। The Bible itself calls us saints. It says, Romans 1 says, to all who are beloved of God in Rome, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. पढ़े। उन सबको जो रोम में परमेश्वर की प्रिय है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति Yeah. मिले। So here it says saints. What is the meaning of saints? यहाँ पे संत बोला गया है। संत का मतलब क्या होता है? What is the meaning of saint? Anybody know? क्या किसको पता है? Ashwin? Yes, set apart, the separated ones. मतलब एक जो ऐसे लोग जो अलग है बाकी सबसे। Separated from whom? किस चीज से अलग किया गया है ये लोग? Separated for Jesus, for God. Separated. They are separated ones from the world. प्रभु के लिए अलग किए गए हैं इस दुनिया से। So we call ourselves, what we call each other, we call each other brother, sister. तो हम लोग जब एक दूसरे को भाई या बहन बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे को क्या बुला रहे हैं? हम लोग एक दूसरे को संत बुला रहे हैं। You can call it as saints. तो हम लोग को एक दूसरे को संत बुलाना है। You can call it, what is my name? My name is Saint Vidya. तो अगर मैं बोलूँगा मेरा नाम क्या है? मेरा Or नाम Saint Juliet or Saint Kevin. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नाम सेंट अविनाश है या सेंट केविन है। Yeah, my brother also. Brother and saint. When you get born again, you get this title. Brother of Jesus, saint and जब तुम saint. नया जीवन पाते हो प्रभु में, तभी तुम प्रभु यीशु के भाई बन जाते हो और तुम्हें ये नाम मिल जाता है कि तुम एक संत हो। You get a wonderful title that God calls you saint. कितना अच्छा बात है कि प्रभु स्वयं तुम्हें संत बुलाते हैं। You know, once I was traveling with in the college, and I was born again. एक बार मैं कॉलेज की तरफ जा रहा था और मैंने नया जीवन पाया था उस समय। So we used to travel back from college from Church Gate to back to Malad, and my friends used to travel along with me. और कई बार हम लोग चर्च गेट से मलाड वापस घर लौटते रहते थे और मेरे दोस्त लोग मेरे And साथ आते रहते some of them were also, not normal Christians. थे। और उसमें से कुछ लोग थे जो बस ऐसे जो साधारण ईसाई थे वैसे रहते And थे। I used to talk to them something about God in the train. और ट्रेन में मैं उनसे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करता था प्रभु के बारे में वो सब। So my friend was telling me about some people who are such good saints. He was a Jacobite, so they are saints and this and that. तो एक विश्वासी मेरे को बोल रहा था कि वो याकूबाइट
गलेशिया का था तो बोल रहा था काफी सारे संत लोग हैं वहाँ पर, But he was saying they're all dead, you know. लेकिन वो बोल रहा था कि सारे संत अभी मर चुके हैं। But he said, I told him there are living saints. तो उस समय मैंने उसको बोला कि अभी जीवित संत भी तो है। He was quite surprised. Living saints? तो वो एकदम अचंभित हो गया, उसने बोला जीवित संत कहाँ पे? Where? कहाँ पर? I said, you're seeing somebody next to you. मैंने बोला कि क्या तुमने देखा है तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है? He said, you. तो उसने बोला तुम। He said, oh, you are a saint. उसने बोला कि तुम संत हो। Oh, you don't have to do any pious works and all these things. No, Bible says when you're born again, you become a saint. तो तुम्हें ऐसा कोई बहुत बड़े-बड़े काम करने की जरूरत है? नहीं, बाइबल में लिखा है जब तुम नया जीवन पाते हो तुम संत बन जाते हो। What a privilege it is. तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। If you're a saint, you live like a saint. अगर तुम संत बुलाए जाते हो तो संत की जैसे जियो। Don't live an unsaintly behavior. और एक जो संत नहीं होता वैसा जीवन मत जियो। You're a brother of Jesus, live like a brother of Jesus. You're a sister of Jesus, live like brother and sister of Jesus Christ. अगर तुम प्रभु यीशु का भाई या बहन हो तो उसी के योग्य जीवन जियो। And that is a wonderful privilege that God gives each one of us. और ये बहुत ही बेहतरीन मौका प्रभु हम सबको देता है। We see in different ways. Go look up your concordance in Acts chapter 26 verse 10. Don't turn up. He says they locked up the saints. प्रेरितों के काम में और ही जगह पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे संत शब्द इस्तेमाल होता है, वहाँ पे लिखा है कि जितने भी संत थे उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था। And 1 Corinthians chapter 6 verse 2 he says the saints will judge the world. और एक कोरिन्थियों में ये लिखा है कि जो संत लोग हैं वो लोग एक दिन इस दुनिया के ऊपर न्याय देने वाले God हैं। one day in the judgment seat of God you'll have to sit along with Jesus and judge the world. एक दिन हम लोग प्रभु यीशु के साथ बैठेंगे और ये पूरे दुनिया के ऊपर न्याय करेंगे। You may be a peon in the office, but one day when you go to heaven, you'll say, God will call you, come and judge all your bosses and everybody. You sit next to me and judge all their works. भले तो अपने ऑफिस में अभी पियोन रहो, लेकिन एक दिन तुम प्रभु यीशु के सामने साथ बैठोगे और जितने भी तुम्हारे ऑफिस में बॉस लोग हैं उनको तो उनके ऊपर तुम न्याय करोगे। We'll be given the task of judging people तो लोगों के ऊपर न्याय करने का काम हमें मिलेगा in heaven. स्वर्ग में। And that is a wonderful privilege that God gives us. और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है जो प्रभु हमें देता है। And with the saints, if you're a saint, you're sure to go to heaven when Jesus comes. तो अगर तुम एक संत हो तो तुम निश्चित स्वर्ग में जाओगे जब प्रभु यीशु आएंगे। 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. You can already look at that. चैप्टर 3 वाक्य 13। God is going to take all the saints to heaven with him. प्रभु यीशु सारे संतों को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं। So if you die today, and if you're a saint, you'll go to heaven. तो अगर तुम मरोगे आज और अगर तुम संत हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। And who's a saint if you are born again? और संत कौन होता है जिसने नया जीवन पाया है? You have to be born again to become a saint. संत बनने के लिए तुम्हें नया जीवन पाना पड़ेगा। You have to ask Jesus to come into your life, repent from your sins, turn away from your sins. तुम्हें पछतावा करना पड़ेगा, अपने पापों से उससे मुंह फिराना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि प्रभु यीशु आप मेरी जिंदगी में आओ। The families of saints and all the people who belong to the saint, they also are blessed. जो संतों के जो परिवार रहते हैं उनको भी आशीष मिलता है इन संतों के द्वारा। I sometimes call them saintlings. Saintlings. संत के बच्चे. अच्छा। So Like all the small children. हाँ, तो ये जो संत के जो परिवार वाले रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं उनके मैं संत के बच्चे बोलता हूँ। God has sanctified all of them. क्योंकि प्रभु यीशु ने उन सभी को शुद्ध बनाया है। That is, the Bible says that see, children of all the saints are sanctified. बाइबल में ऐसा लिखा है कि जितने भी संतों के बच्चे हैं वो लोग भी शुद्ध किए गए हैं। God has a special protection for God's saints, the children of the saints family. उनके ऊपर एक खास प्रभु का रक्षण आ जाता है क्योंकि वो लोग संत के परिवार होते हैं। Because of all the small children, even though they are so naughty and bad, God has a protection over their life. तो इसलिए जो छोटे बच्चे रहते हैं भले वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, इसके बावजूद प्रभु का रक्षण उनके ऊपर रहता है। But one day they have to also become a saint. लेकिन एक दिन उन्हें भी संत बनना है। Like a duck and a duckling, they're saint and a saintling. जैसे एक बतख रहता है, बतख का बच्चा होता है, उसी तरीके से एक संत और संत का बच्चा होता है। But God wants them to grow up and become a born again person. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े अपने जीवन में और एक दिन नया जीवन पाए। But everybody has to be born again. हर एक व्यक्ति को नया जीवन पाना है। So that is very basic in our Christian life. ये सबसे बुनियाद की बात है हमारे ईसाई जीवन में। Jesus said, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति नया जीवन नहीं पाता तभी तक वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So only the saints can enter the kingdom of God. सिर्फ संत लोग ही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। That's why we have to encourage every person in this world, please be right with God, please be born again and become a saint. इसलिए दुनिया के हर एक व्यक्ति को हमें प्रोत्साहन देना है कि तुम प्रभु के साथ अपना रिश्ता सही करो और नया जीवन पाओ। We have to tell this gospel to our fathers and our mothers and brothers and sisters and uncles and aunties and all the people around in our workplace and our relatives, everybody, please, this is the gospel that you will become a saint. हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन सबको हमें प्रभु को सुसमाचार देना है ताकि वो लोग प्रभु को जाने और फिर बच सके। It's not of your merit, but it's only by the merit of Jesus Christ. Because Jesus Christ cleansed you, cleaned you by a precious blood, you become a saint. तो हमारे योग्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रभु के योग्य और उसके कार्य के ऊपर निर्भर है जिसके द्वारा हम लोग संत बनते हैं। And that is a wonderful privilege. I said, oh, I'm so happy that Jesus Christ has come into my life. और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, लोग बोल सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। I belong to Him. He takes charge of my life. I'm His child, and He'll take care of every area of my life. मैं प्रभु यीशु का हूँ, उसने मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण लिया है और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र का ख्याल वो रखता है। All my future, all my problems, all my sicknesses, everything is under His control. सारे मेरे समस्या, सारे मेरे भविष्य, सारे मेरे बीमारियां, सब चीज उसके नियंत्रण में है, वो मेरा ख्याल रखता है। I belong to a country called heaven. मैं एक स्वर्ग
नाम के देश का नागरिक हूँ, I'm a citizen of heaven. स्वर्ग का नागरिक हूँ मैं, I'm not a citizen of this world. इस दुनिया का नागरिक नहीं हूँ मैं, And I've lived like that. और उसी तरीके से मैं जीऊंगा, And it's a wonderful privilege like that. और इतना अच्छा बात है हमारे लिए। And the Lord tells us you have to continue to live like this. और फिर प्रभु बोलता है कि इसी तरीके से भी जीते रहना है, And then also you have to progress in your Christian life. और फिर अपने ईसाई जीवन में प्रगति करते जाना The है। second phase is to live like a soldier. दूसरा भाग है कि हम लोग एक फौजी जैसे जिए। We all heard about some time back that 1 John, the Apostle John is telling the believers that you are little children, you know the new God. एक बार हमने सुना था कि कैसे अपोस्टल यूहन्ना विश्वासियों को बोल रहा था कि छोटे बच्चे तुम पिता परमेश्वर को जानते हो, And as young men, you have overcome the evil one. और जो युवक है तुमने शैतान के ऊपर विजय पाया है। Overcoming is what is a fighting. विजय पाना मतलब क्या? झगड़ना पड़ता है। Suppose there is somebody coming to outside our house, or this some people are coming to try to quarrel. अगर सोचो कि कोई यहाँ पे लोग आ गए और लोग झगड़ा करने लग गए, Who will go and meet this? Or get all the small children to go and talk to them? तो उस समय क्या हम लोग छोटे बच्चों को भेजेंगे उनका सामना करने के लिए? Which are all these solid young fellows to go and settle all these matters, हम and they're लोग क्या trying to बोलेंगे? fight. जितने भी युवक लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको भेजेंगे वहाँ पे, And they'll run away. और वो लोग जो आए हैं वो लोग भाग जाएंगे। God wants us to be fighters, to be soldiers. प्रभु चाहते हैं कि हम लोग भी उसी तरीके से फौजी बने, Brothers and sisters, to be soldiers of the cross. भाई और बहनों, अपने क्रूस का फौजी बनना है। This is known as the Salvation Army. उसको मुक्ति वाला आर्मी, सेना बोलते हैं। All of us have to be soldiers and the cross of soldiers for Jesus Christ. हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु के क्रूस का फौजी बनना है। Where do we see that verse? ये वचन हम लोग कहाँ पे देखते हैं? 2 Corinthians, 2 Timothy. दूसरा टिमोथी में, दूसरा टिमोथी Chapter 2, verse 3 and 4. चैप्टर 2 वाक्य 3 और 4। Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself with the affairs of this everyday life, so that he may please the one who has enlisted him as a soldier. पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धाओं के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसीलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। Soldier, what do you mean? A simple word for soldier? Sainik, Fauji? सिपाही। Sipai. We have to be soldiers. तो हमें सिपाही जैसे बनना है। And you know the habits of soldiers? और हम सब लोग जानते हैं कि सिपाही की आदतें कैसे होती है। Very disciplined people. बहुत ही उनको अनुशासन लाना पड़ता है अपने जीवन में। They cannot sleep and eat and drink and roam around as they like. They're very disciplined. They obey commands from God. वो लोग अपने अनुसार खाना पीना their commander. वो लोग अपने अनुसार खाना पीना या सोने जैसे नहीं कर सकते। वो लोग को अपना जो उनके ऊपर जो अधिकार है उसके अनुसार चलना पड़ता है। And we have to be soldiers of Jesus. And who's our captain? और हमें भी प्रभु यीशु के सिपाही बनना है। Jesus is our captain. और हमारा अधिकार कौन है? प्रभु यीशु स्वयं। And most people don't like to become soldiers और कई लोगों को सिपाही बनना अच्छा नहीं लगता, because it involves a lot of discipline. क्योंकि इसमें बहुत अनुशासन लाना पड़ता है जीवन में। They like to be civilians. उनको सबको बस नागरिक रहना है, We like to enjoy life. उनको बस जीवन में मजे करना है। But the privileges of becoming soldier are too much. लेकिन अगर तुम सिपाही बनोगे तो उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। They get the highest honor, Paramvir Chakra, this Chakra, because they are honored in this world. जितने भी सब Fathers. तो जो सैनिक रहते हैं वो लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ते, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। So he told Timothy, you also become like a soldier for Jesus तो यहाँ पे Christ. अपोस्तल पौल तिमोथी को बोलते हैं कि तुम भी प्रभु यीशु के एक सैनिक बनो, सिपाही बनो। Don't entangle yourself with the affairs of this world. ये संसार की चीजों के झंझट में तुम मत पड़ो, In order that you may please the one who has called you. ताकि तुम उसको प्रसन्न कर सको जिसने तुम्हें बुलाया है। See, we can entangle ourselves as believers with 101 other problems. हम लोग विश्वासी होने के बावजूद 101 संसार की चीजों में फंस सकते हैं। So like a soldier, he will not care about he is not interested in about the politics. जो सिपाही रहता है वो यहाँ पे जो राजनीति चलता रहता है उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। Who is coming to power? He has no discussion about it. He is not supposed to discuss it at all. वो ये सब चीजों में बिल्कुल चर्चा नहीं करता कि कौन नेता आने वाला है नहीं आने वाला है। He is supposed to say, Lord, I've got a duty, I'm supposed to do it. उसका बस एक ही चीज होता है कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। And he is very disciplined about it. और बहुत उसके बारे में अनुशासन रखना पड़ता है उसे। And if the soldiers go to sleep, और अगर सैनिक अगर सोने जाते हैं others will suffer. दूसरे लोग दुख उठाएंगे। He gets shot, अगर उसको कुछ हो गया and others also behind the country suffers. तो देश को नुकसान होता है। We don't see so many soldiers all around us. हम लोग हमारे इर्द गिर्द या आजू बाजू में बहुत सारे सैनिकों को नहीं देखते। But the soldiers, the nearest soldier we can see are the watchmen in our building.
जो एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, जो वॉचमैन रहते हैं बिल्डिंग का, वो एक सैनिक जैसा होता है। They have to be very disciplined. उनको भी बहुत अनुशासन रखना पड़ता है अपने We जीवन got a watchman in our building, but he's not at all disciplined. में। हमारे बिल्डिंग में एक वॉचमैन है, लेकिन वो बिल्कुल अनुशासन Most of नहीं the time he goes to sleep in the night. है। रात में हमेशा सोता रहता है। But that's how we have accepted our watchman now. तो लेकिन हम लोग ने उसको उसी तरीके से अभी अप्लाई लिए। One day I was in the hospital and one day one person came to me. एक दिन मैं हॉस्पिटल में था और एक व्यक्ति मेरे पास आया था, He had come for a medical checkup चेकअप के लिए आया था and he was dismissed from service. और डिस्मिस्ड। हाँ. तो उसको अपने काम से वो निकाला गया था। And then I checked him. He said he was fine. I said he made him fit for duty. तो मैंने बोला कि चेकअप करने के बाद बोला कि तुम तो एकदम ठीक ठाक हो ड्यूटी के लिए। So, so I asked him, why were you dismissed from service? फिर मैंने पूछा कि तुम क्यों निकाले गए थे अपने काम से? He said, see, I was a watchman. I was supposed to guard. I was found sleeping on duty. उसने बोला मैं वॉचमैन था, लेकिन अपना काम करने के सिवाय मैं सो रहा था और And पकड़ा गया when था। they found me and they dismissed me immediately. तो उन्होंने मुझे पकड़ा और तुरंत मुझे निकाल दिया। See, so many people sleep on duty. तो कितने सारे लोग हैं जो अपने काम के समय सोते रहते हैं। So many staff, even the nurses sleep on the duty, doctors sleep on duty, so many other. But a watchman can never sleep on duty. कितने बार रहते हैं जो डॉक्टर रहते हैं या नर्स या दूसरे लोग भी अपने काम के समय बीच में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, लेकिन वॉचमैन कभी भी नहीं सो सकता। He cannot even blink an eye. वो आँख झपक भी नहीं सकता एक बार, Because if he blinks an eye, the robbers are waiting to come inside. क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वहाँ पे चोर लोग बस रुके रहते हैं, कभी वो लोग मौका मिले अंदर आने के लिए। He is supposed to protect. उसका काम है रक्षा करने का। And he goes on off duty, you're gone. अगर वो अपना काम छोड़ दिया तो बाकी सब नुकसान हो जाएगा। That's like that some drivers who are there, I heard recently some taxi drivers, they are found sleeping on, they suddenly keep on dozing while they're driving. जैसे मैंने सुना था कि हाल ही में कुछ ऐसे टैक्सी ड्राइवर थे जो गाड़ी चलाते वक्त वो लोग बीच में सो रहे थे या नींद आ रहा था उन्हें, And suddenly the whole car goes onto the field and dashes and some people get injured. और उसकी वजह से गाड़ी वो रास्ते से निकल के जाके किधर खेती में चला जाता है या किधर भी ठोक के फिर लोगों को चोट पहुंचती है। It's a very dangerous, it is a very responsible thing to become a soldier. तो सिपाही बनना एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। And God has called each one of us from saints to become soldiers. और प्रभु ने हम सबको बुलाया है कि हम लोग संत से फिर फौजी बने या सिपाही बने। The vast majority of people in every church are saints. There are soldiers are very less. कलेशिया में जितने भी कलेशिया है उसमें अधिकतर लोग वो लोग संती हैं, फौजी बहुत ही कम है। And when people tell them to encourage them to be soldiers, they say, oh, I don't want, all sort of excuses. और अगर हम लोग उनको प्रोत्साहन दें कि तुम भी सिपाही बनो तो उस समय वो लोग फिर बहाने देने लग जाते हैं। In America, they know they are compulsory to become soldiers. In America. इन अमेरिका में बहुत ही ये जरूरी कानून की बात है कि हर एक व्यक्ति को सिपाही बनना पड़ता है। Because they have to go to different countries and do a lot of policing everywhere in this world. क्योंकि उनको दुनिया में के अलग-अलग देशों में जाना पड़ता है और वहाँ पे पुलिस का काम करना पड़ता है। If you don't want to be a soldier, you have to go to prison. अगर तुम्हें फौजी नहीं बनना है तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। So I wish also many of us were also, most of us young people were also sent to the army for some time. उसी तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि कई सारे जो युवक हैं यहाँ पे उनको थोड़े समय के लिए सेना में भेजना चाहिए। We'll become much more disciplined. ताकि वो लोग के जीवन में और अनुशासन आ सके। So this young man was sent to the army. He thought I will go have a good life. और ये जो व्यक्ति था, वो युवक था, वो सेना में गया था और सोच रहा था कि उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर। But when he said you have to get up at 4 o'clock in the morning, लेकिन वहाँ पे से मालूम कर रहा है सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा, take bath, do drills, नहाना पड़ेगा, फिर जितने भी सब काम रहते हैं वो करना how पड़ेगा। much the work they make us do. इतना काम वो लोग हमें कराते हैं And he started crying और वो रोने लगे वहाँ पे and started telling on the phone, this is what they make us do. और वो बोलने लगा कि ये सारी चीजें हमें कराते हैं वहाँ पे। Bible says, this Billy Graham was given message. He says God demands much more, same thing or much more from his own children. तो बिली ग्राहम भाई एक बार बोल रहे थे कि प्रभु अपने बच्चों से भी यही चीज की आशा रखते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा चीजों की आशा रखते हैं। If Jesus, there is a soldiers, or when he says soldiers on the parade, we also say, Lord, we have to see a soldier. Lord, I have to become like that. तो जब लोग कभी-कभी सिपाहियों को देखते हैं परेड में, तो हमें खुद भी सोचना है कि प्रभु यीशु मुझे भी आप में एक सिपाही बनना है। Obedience to God. प्रभु यीशु के आज्ञा का पालन करना है। Obedience to people around us. और जो हमारे ऊपर जो अधिकारी है उनके आज्ञा का पालन करना है। How people in this world are, this says, somebody tells in the government office, please do this, I don't want to do it. इस दुनिया में लोग कैसे होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे किसी ने अगर किसी को बोला ये चीज करो तो वो नहीं करेगा। I recently went to this new hospital. I told a junior doctor, please sit for this for 2 hours over here. मैं अभी जो नया अस्पताल में गया था, वहाँ पे मैंने एक जूनियर डॉक्टर को बोला कि ये जगह पे जाके 2 घंटे के लिए कुछ करो। And then he said, after thought, he said, I'm not very happy about it. He तो said, वो काम होने के बाद उसने बोला कि मैं ये काम के बारे में इतना खुश नहीं हूँ। this is the way such a lot of indiscipline is coming into this world. तो इस दुनिया में इतना गलत हो रहा है, कोई भी चीज अनुशासन के हिसाब से नहीं होता है। It is the spirit of rebellion is coming to everybody. जो गलत आत्मा आ रहा है इस दुनिया में, जिसके द्वारा लोग आगे का पालन नहीं कर पाते। When we have blood donation camps,
कई बार वो लहू देने का प्रोग्राम होता है। We tell, please donate the blood for the sake of the poor people who are getting accidents, and also we have enough stock of blood in the blood banks. तो उस समय हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि वो लोग लहू दे ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें लहू मिल सके। And we request all the departments, all the people, please come and give. और हम लोग सारे डिपार्टमेंट से विनती करते हैं कि तुम लोग आके दो अपना खून। Many people say, I'll see, we'll see, okay, this, that, okay, I will do that. They come and do, they think we are doing a big mehrabani to us. और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे, वो लोग इतना निश्चित नहीं रहते, और अगर आएंगे तो भी ऐसे सोचते हैं कि वो लोग आके एहसान कर रहे हैं। But we have got a police department also in the railways. लेकिन हमारे रेलवे में एक पुलिस का भी डिपार्टमेंट है। So I told that police in charge, I said, please request your people to come and also give the blood. तो वहाँ पे जो पुलिस का अधिकारी था, मैंने उसको भी बोला कि जितने भी आपके नीचे लोग हैं उनको भी बोलो आके खून देने के लिए। He told me request. तो उसने बोला विनती करो। I just order them. तो वो बोलता है कि मैं अपने लोगों से विनती नहीं करता, मैं उन्हें सीधा आदेश देता हूँ And they have to come. और उनको आना पड़ता है। All of them come, all the big cadavers, they come and lie down and give the blood one by one. और सारे जितने पुलिस वाले थे सब लोग आके एक एक करके अपना खून देके चले गए। And I saw that they all came one by one. There was no grumbling, no murmuring. और सब लोग आए, किसने भी कुछ कुड़कुड़ नहीं किया। They said if you grumble and murmur, you'll be punished like anything. क्योंकि वहाँ पे अगर तुम लोग कुड़कुड़ करोगे तो तुम्हें एकदम अच्छा सजा मिलेगा। Brother Zach was like that, he was in the army. ब्रदर जैक भी सेना में थे एक समय He पर। was in the navy. वो नेवी में थे। He said the navy you have to observe the commands implicitly. वो बोल रहे थे कि नेवी में जो भी तुम्हें आज्ञा मिलती है उसे पूरी तरीके से उसका पालन करना पड़ता है। He said if they tell you to take about turn, वहाँ पे बोला अगर उन्होंने तुम्हें उल्टा मुड़ने बोला and you take a right turn, और तुम सिर्फ दाएं मुड़े, they'll give such a beating of your life that you'll never forget it. तुम्हें ऐसी सजा देगी कि तुम कभी जिंदगी में फिर दाएं नहीं मुड़ोगे। So you'll always obey. फिर तुम हमेशा आगे का पालन करोगे। And that is what God tells us. With the word of God, we tremble at the word of God. उसी तरीके से हमें प्रभु के वचन की ओर डर भय रखना है। They tremble at God's word and do it exactly as it said. प्रभु के वचन की ओर हमें भय रखना है और उसकी जो उसमें लिखा है उसी अनुसार हमें वही चीज करना है। But most believers won't tremble at God's word at all. लेकिन कितने सारे विश्वासी हैं जिनके मन में प्रभु के वचन की ओर कोई भय नहीं है। Because that's why things go badly with us. और इसकी वजह से उनके जीवन में फिर अच्छा नहीं होता। God can't support us. क्योंकि प्रभु यीशु हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। We say anything with our tongue. हम लोग हमारी जीभ से कुछ भी बोल देते हैं, We behave as any way. कैसे बर्ताव करते हैं। But God, the Holy Spirit, wants to train us. लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि हमें सिखाना चाहता है। He wants us to be good soldiers of Jesus वो Christ. चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु के अच्छे सिपाही बने। Enlisted as in the army. Enlisted as in the army. हमें उसने सेना में भर्ती किया है। And it's such a privilege to be a soldier of Jesus और ये Christ. बहुत ही बेहतरीन मौका है हमारे लिए कि हम प्रभु यीशु के सैनिक बन सकते हैं। It's a privilege to be a saint and privilege to be a soldier. बहुत ही अच्छा मौका है संत बनने के लिए और सिपाही बनने के लिए भी। And beyond the soldier, you can become a savior. और फिर अंत में हम लोग फौजी बनने के बाद हम लोग उद्धारक बन सकते हैं। So what is a savior? Savior is like a shepherd. उद्धारक मतलब क्या? एक चरवाहा के जैसे रहता है वो। A shepherd is the one. Jesus, who's the good shepherd? Jesus. अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। And Jesus also has kept shepherds in the flock in his kingdom. और प्रभु यीशु ने और जो छोटे चरवाहे रखा है अपने कलीसिया में। We see that book in passage in 1 Peter ये हम लोग chapter 5. देखेंगे पहला पत्रस में चैप्टर 5, पहला पत्रस चैप्टर 5, Chapter 5 verse 1, 2. चैप्टर 5 उसमें वाक्य 1 और 2। Therefore I exhort the elders among you as your fellow elders and witness of the sufferings of Christ and partakers of the glory that is to be revealed. Shepherd the flock of God among you, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, not for sordid gain, but for eagerness, not yet lording it over allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. And when Christ, the chief shepherd, appears, you will receive the unfading crown of glory. So, हिंदी में पढ़िए, वर्स 2 और 3 पढ़िए। कि अपने मध्य स्थिति परमेश्वर के झुंड को रखवाली करो और ये किसी दबाव से नहीं परंतु स्वेच्छा से तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुच्छ कमाई के लिए नहीं वरना उत्साहपूर्वक करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ परंतु अपने झुंड के लिए आदेश बनो। God wants many laborers or shepherds in this field. प्रभु चाहता है कि उसके खेत में कई सारे लोग आए, मजदूर आए या चरवाहा आए। See, a shepherd is the one it's not a very attractive job. एक चरवाहा का जो काम रहता है बहुत ही आकर्षक काम नहीं होता है। Have you seen any shepherd in the fields? You go to the rural area and see shepherds. कभी अगर हम लोग कोई गांव की ओर जाएंगे वहाँ पे लोग देखेंगे कितने सारे चरवाहे होते हैं। They look very simple and very ordinary. वो लोग बहुत ही सीधे साधे दिखने में होते They're हैं। not handsome and they're very well dressed. वो लोग बहुत ही आकर्षक या सुंदर या अच्छे कपड़ों में नहीं रहते। Their job is to look after the sheep. उनका काम ये होता है कि भेड़ों के ऊपर ध्यान रखना।
and they have to look after the well and protect it from the wolves and all the wrong things. और भेड़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें बचाना पड़ता है, जो उनको खाने आते हैं उन सब Look after their nourishment. और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। All those who are married and they are shepherds to their own families. जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शादीशुदा है, अपने परिवार के ऊपर वो चरवाहा है। They have to look after their own children. तुम्हें खुद के बच्चों के ऊपर देखभाल करना है। They have to see that all the wrong influences don't come to their home. तुम्हें देखना है भी जो भी गलत चीजें हैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आए। They have to nourish their children. तुम्हें बच्चों का भोजन पालन पोषण करना है। The nearest we can say for a shepherd is like the mother to her children. चरवाहा का सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों की और उनका ख्याल रखती है। The mothers are never thanked for all the work and the hard work they have done for their children. माँ जो अपने बच्चों के लिए काम करती है उसके लिए कभी उसे कोई धन्यवाद या अच्छा कुछ इनाम नहीं मिलता। In fact, they get a lot of complaints and a lot of all the things, all wrong things. They get a lot of shouting also. लेकिन कई बार उन्हें डांट मिलती है और बहुत कुछ सुनना ही पड़ता है। But still they do the work. लेकिन इसके बावजूद वो लोग उनका काम करते जाते हैं। Bible says that shepherds will have to not for money's sake and not for any title's sake. उसी तरीके से बाइबल में लिखा है कि जो चरवाहा है उन्हें पैसों के लिए नहीं, ना कोई बड़े स्थान के लिए नहीं। If you want to shepherd others, it is a very good thing. अगर उन्हें वो काम करना है तो क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम है। That's the modern name for shepherd is what? सबसे जो आज का नाम क्या है चरवाहा के लिए? Pastor. पास्टर। Pastor is a very good name. पास्टर एक बहुत ही अच्छा But सुनने all को the लगता है। pastorship they call them shepherd, they will not like the name very much. लेकिन ये पास्टरों को अगर हम लोग चरवाहा बोलेंगे तो उन्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा सुनने के They लिए। call me Gadaria George or Gadaria this. They will say, "अरे ऐसा कैसा?" It's not doesn't very sound very nice. क्योंकि सुनने के लिए वो शब्द इतना अच्छा नहीं है। They put pastor, PR, pastor, short form also they वो make. लोग कई बार पास्टर करके अपना डालते भी है अपने नाम के सामने। So pastors have to be. This is what a qualification to be a shepherd. That you will not get a single advantage of anything at all. तो अगर मुझे चरवाहा बनना है तो उसके अगर योग्य अगर मुझे जीना है तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मैं किसी का भी फायदा नहीं उठाऊं। God wants many pastors in the church. प्रभु चाहते हैं कि बहुत सारे चरवाहे या पास्टर चर्च में आए। Bible says, and I think in Timothy it says, if anyone wants to become the office of an elder, he is a fine work that he desires to do. बाइबल में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके मन में एक एल्डर बनने की इच्छा हो तो बहुत ही अच्छा इच्छा है उसकी। Why it's a fine work? क्यों बहुत ही अच्छा काम है ये? You can go for the elders meeting and sit there and get all the benefits. ताकि तुम एल्डर के मीटिंग में जा सको और वहाँ पे सब जितना भी सुविधा है उसका इस्तेमाल कर सको। Because you're going to take responsibility not only for your life, you're going to give an account of all the people's around you to God. नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम इसलिए है क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जितने भी तुम्हारे लोग नीचे लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। And that is the important. That is very good. I would like to be on top. But the top is you get a lot of responsibility. तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ अच्छा है मैं सबके ऊपर रह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ऊपर रहोगे तो तुम्हें जिम्मेदारी मिलेगी उन सब लोगों की। You get all the firing for it. और जितना भी उसके लिए डांट है वो भी तुम्हें मिलेगी। Like when we are in the hospital, we are in the workplace, and you are the in charge of a department. जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे ऑफिस में अगर मैं कोई डिपार्टमेंट में मैं वहाँ पे अगुवा हूँ, And all the mistakes of all the Safaiwala and all the other people, that person in charge will get the blame. तो जितने भी सब कुछ भी अगर गलत होगा, भले वो किसी और ने मेरे नीचे ही वो गलत काम किया रहेगा, लेकिन सुनना मुझे पड़ेगा। But he has to take the blame. क्योंकि मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Because they are working under him. क्योंकि वो जितने भी लोग हैं मेरे नीचे काम कर रहे हैं। If the children go astray, who has to take the blame? The parents have to take the blame. अगर बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं तो किनको जिम्मेदारी लेनी है? माता पिता को। I did not bring them up in the proper way. You have to tell that to उनको the Lord. बोलना है कि हाँ मैं उन्हें ठीक से बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। If the people in the church go astray, we have to take the blame. अगर कलीसिया के लोग मार्ग से भटक रहे हैं तो मुझे एल्डरों को जिम्मेदारी लेना पड़ता The है। Apostle Paul said that he told the Corinthians are behaving in such a bad way that the Apostle Paul said, I am so ashamed. This is the church which I only built. इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब कोरिन्थियों के कलीसिया के लोग ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे थे, उस समय अपोस्तल पौल शर्मिंदा था और बोल रहा था कि ये कलीसिया मैंने बनाया है। They are fighting, quarreling, doing all sorts of bad things. He says, God will humiliate me. कोरिन्थियों में जो लोग थे वो लोग झगड़ रहे थे और अनेक पापों में पड़ रहे थे, लेकिन अपोस्तल पौल बोल रहा था कि प्रभु मुझे दोषी ठहराएंगे। That's a great responsibility. क्योंकि इतनी जिम्मेदारी की बात होती है। And God wants many more shepherds. और प्रभु चाहते हैं कि और चरवाहे आए। That's why Jesus prayed, please pray that God will send more laborers into his field. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि प्रार्थना करो कि प्रभु और मजदूरों को अपने खेत में भेजे। God doesn't want people, a lot of advisors. प्रभु को बस सलाह देने वाले नहीं चाहिए। Advisors are plenty. सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं। But laborers, what do you say laborers? Mazdoor. All the laborers are required. लेकिन जो मजदूर है उनकी जरूरत है। And nobody wants to do hard work. और किसी को भी मेहनत का काम नहीं करना है। And the Lord wants people like that. We must grow up from being saints to soldiers and laborers. तो प्रभु चाहता है कि उसी तरीके से हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े, संत से फौजी, फौजी से मजदूर बने। And the Lord is able to bring us. God is no respecter of persons. और प्रभु के पास कोई भेदभाव नहीं है, वो हमें वो स्थान पे लेके जा सकता है। All those who want to seek and seek after God can be useful in the kingdom of God. जो कोई प्रभु का खोज करना चाहते हैं वो उसके राज्य में इस्तेमाल होंगे। And
May the Lord help us. और प्रभु हमारी मदद करे। Amen.